Good morning, class 8th students. Welcome to your new class, that is your 8th class. So class 8, I am your social studies teacher. My name is Pratibha Dwivedi and I will teach social studies to both the classes of 8th, that is 8th A and 8th B, in this academic session of 2021 to 2022. So class 8th A and B, we will be studying social studies together in a very playful manner and in a very convenient and easily understandable way, because you know that this subject is somehow difficult and there is a lot of learning process in this subject. So you need to focus on this subject right from the starting. Okay, so before moving further in this subject, let's have the introduction of this subject. So your subject is social studies or science. Okay, ठीक है बच्चों, आप एसएसटी को सोशल स्टडीज भी बोलते हो और एसएससी भी बोलते हो, सोशल साइंस भी बोलते हो. इन दिस सब्जेक्ट वी स्टडी अबाउट आवर सोसाइटी. देयर आर 3 sections in this subject and these are, the first one is history, the second one is geography and the third one is civics. So in history we study about the past events, about the past happenings, about the culture and heritage of our nation, about the architecture that was being developed in the past times, about the brave warriors, about the who ruled over our nation. Then in history we study about the past events and happenings. In geography we study about the surroundings of our nature, about environment, about earth, about planet, about solar system, about all demographic conditions, about all climatic conditions, weather, etc., etc. And in civics we study about the status of different kind of people in our nation, such as status of women, status of poor, status of children, status of old men, and various other constitutional reforms and things related to the polity, that is our constitution. So in civics we study this. So today we are going to start the first chapter of this new academic session, and that is from the unit of history. Okay, so this we will be studying from the unit of history, which is your lesson number 1. And the name of the lesson number 1 is where, when and how. Where मतलब क्या होता है बच्चों? कहाँ पर, when मतलब कब, और how मतलब कैसे. ठीक है, आप लोग क्लास 8th में हो तो एटलीस्ट आप लोगों को इन सारे वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए. चलो, तो इन लेसन नंबर 1 you will first learn about the overview of the modern history or modern period. See children, in class 6 you studied about the ancient history. Okay, you all know this, that there are 3 parts of history, or history is classified into 3 periods, and that is, the first one is ancient history, which you studied in class 6. In class 7 you studied about the medieval history. And in class 8, in this session you are going to study about the modern history. Okay, so this way you will cover the
major portion of your subject, that is history. In ancient history, in class 6, you studied about the past happenings of history which happened before the historic period that we call as prehistory, or after historic period which was about total ancient in nature. ठीक है, सबसे बहुत पुराने ज़माने में जो इतिहास में बीता वो आप लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा, जिसमें आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, वैदिक एरा के बारे में पढ़ा था, आप लोगों ने हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, चलो क्लास 7th में क्या पढ़ा, क्लास 7th में पढ़ा अबाउट मेडिवल हिस्ट्री, इसको हिंदी में हम लोग मध्यकालीन इतिहास कहते हैं कि अब मध्यकालीन भारत के इतिहास में क्या हुआ था। तो क्लास 7th में ये पढ़ा। अब क्लास 8th में क्या पढ़ोगे, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री मतलब नए युग में हमारा देश कैसे, हमारे देश को इंडिपेंडेंस मिला और नए युग में हमारा देश कैसे संचालित हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग आज बच्चों लेसन नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं फ्रॉम द यूनिट ऑफ हिस्ट्री विच इज अबाउट वेयर, व्हेन एंड हाउ। एंड इन दिस चैप्टर वी विल फर्स्ट have an information regarding what is modern history and how it is written, how it is framed, and what all we have to study in modern history. So to study this you should first open the book and come to page number 7. कम टू पेज नंबर 7। तो बच्चों देखिए आप लिखा है इन फोकस। इन फोकस मतलब ये जो आपने लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस लेसन में क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट थिंग क्या पढ़ना है आपको, एन ओवरव्यू अबाउट व्हाट, अबाउट एन ओवरव्यू अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री। Then secondly you see about learning of new terms। अब इसमें क्या पढ़ोगे, हिस्ट्री में जो हम लोग टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, जो नए नए शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे हम क्या समझते हैं, जिससे हम उस एरा के बारे में, उस हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। तो उस टर्मिनोलॉजी को हम लोग सेकेंड पॉइंट में पढ़ेंगे। देन इन थर्ड पॉइंट वी विल स्टडी अबाउट सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो बच्चों मॉडर्न हिस्ट्री, अब इतिहास के बारे में हमें पता कैसे चलता है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं लिखा गया है, तभी हम उन चीज़ों को पढ़ के समझ सकते हैं। अदरवाइज जो भी पास्ट हैपनिंग्स हुई, अगर उनको कहीं पर उनका रिकॉर्ड नहीं होता, कहीं पर उनका अकाउंट्स मेंटेन नहीं होता, कहीं पर उन्हें लिखा नहीं गया होता, तो हम लोगों को कुछ भी नहीं पता चलता। तो हम लोगों को थर्ड पॉइंट में पढ़ना है कि सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में क्या बीता, उनके सोर्सेज, दैट मीन्स वो हमें कहाँ से पता लगा कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ये चीज़ें, ये हैपनिंग्स हुई। In the fourth point we study about National Archive and National Museum। अब नेशनल आर्काइव एंड नेशनल म्यूजियम क्या होता है? देखिए, जो हमारे भारत में जो भी हिस्ट्री में जो भी बीता, उस टाइम पे जो भी साक्ष्य है, उस टाइम के जो भी चीज़ें हैं जिनको रखा गया है हमारे देश में म्यूज़ियम वगैरह में, वो हमारे देश का नेशनल आर्काइव और नेशनल म्यूज़ियम। ठीक है, जैसे गांधी जी थे, उनका चश्मा, ठीक है, उनकी लाठी, और अदर भी जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो वो जैसे तरीके के क्लोथ्स वगैरह पहनते थे। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद का जो गन जिससे उन्होंने अपने आप को शूट कर लिया था, तो ये सारी चीज़ें हम लोग रखते हैं इन द नेशनल आर्काइव एंड नेशनल म्यूज़ियम।
तो ये सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। देन इन द फिफ्थ पॉइंट वी नो अबाउट द राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न पीरियड। फिफ्थ पॉइंट में क्या पढ़ोगे? राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न पीरियड। फिफ्थ पॉइंट में आप देखोगे कि कैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को लिखा गया है, किसने लिखा है, वेरियस अदर हिस्टोरिकल पर्सन्स जिन्होंने लिखा है, और सोर्सेज भी इसमें जानोगे ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ओके, सो लेट्स इंट्रोड्यूस दिस चैप्टर टू ऑल ऑफ यू। चलो, क्या लिखा है बच्चों? यू नो दैट हिस्ट्री इज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड. History is divided into three different periods: ancient, medieval and modern. I've told you all this. You have studied about the first two periods of history with regard to India in the 6th and 7th standard. I told you that in 6th standard you studied about the ancient history, and in 7th standard you studied about the medieval. Now it's time to learn about the modern history in this class of yours. Okay, you'll read about the modern period of Indian history in this class. An overview of the modern period. In the previous class, you read that the medieval period of Indian history began in the 8th century and lasted till the 18th century. तो medieval period का, medieval history का time period क्या था? From 8th century to 18th century. And children, whenever something is important, you have to underline that in the book. So underline it from here. From an overview of the modern period में आप लोग कहाँ से underline करोगे? The medieval period of Indian history began in the 8th century and lasted till the 18th century. So sit with the pencil always. Okay, ठीक है? Thus, while the 8th century marked the start of this period, 18th century marked its end. अब किस चीज़ का end mark किया? Medieval history का. Okay. Hence, the modern period is considered to have begun towards the end of the 18th century. अब medieval history का अंत कब होता है? 18th century में. तो मॉडर्न हिस्ट्री कब से शुरू हो जाएगी? जस्ट फ्रॉम दैट वेयर द मेडिवल हिस्ट्री एंड्स. ठीक है, तो फ्रॉम 18th सेंचुरी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट्स एंड कंटिन्यू टिल डेट. और आज तक अभी भी जो हमारे देश में होता है वो अभी भी मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग लिखते हैं. उनका रिकॉर्ड, उनका ब्यौरा मॉडर्न हिस्ट्री में लिखा जाता है. हेंस the modern period is considered to have begun towards the end of 18th century and has continued till date. Here it must be noted that the division of history into the three periods is not the same for every country. यहाँ पे ये समझने वाली बात है बच्चों कि जो हमारे देश में जिस तरीके से हिस्ट्री को 3 पीरियड में बांटा गया है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर देश के इतिहास को उसको 3 पीरियड्स में बांटा जाए. दैट इज एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न. उनका हिस्ट्री पूरा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड पूरा एक ही तरीके से हो सकता है. ओके. In other words, the periods of time as indicated by the three divisions of history may vary from country to country. For example, the modern period in the European countries is said to have begun in the 16th century. जैसे कि जो यूरोपियन नेशंस है बेटा, okay. For example, the modern period in the European nations, ठीक है, is said to have begun in the 16th century. During this time, India was going through the medieval period. अब जिस दौरान यूरोपियन नेशन का मॉडर्न हिस्ट्री लिखा गया, उस टाइम पे हमारे देश का मेडिवल हिस्ट्री हो रहा था, मेडिवल हिस्ट्री लिखा जा रहा था, मेडिवल हिस्ट्री की हैपनिंग हो रही थी. एंड वाज रूल्ड बाय मेडिवल एम्परर्स लाइक अकबर एंड जहांगीर. तो मेडिवल हिस्ट्री में आपने पढ़ा था ना, जो हमारे मुगल एम्परर्स थे, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, इन लोगों का रूल हमारे देश में चल रहा था.
Why did the modern period not begin simultaneously in all parts of the world? क्या बेटा आप समझ सकते हो कि जो मॉडर्न पीरियड था वो पूरे देश में एक ही टाइम पे क्यों नहीं शुरू हुआ? To find an answer to this, we must first understand the meaning and the important features of the modern period. तो इस चीज़ का आंसर पता लगाने के लिए आपको सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री को समझना होगा. The term modern period stands for the recent times. मॉडर्न पीरियड का मतलब ही होता है recent टाइम, जो कि अभी बीत रहा है. This period is characterized by rapid changes in political, social and economic conditions in various parts of the world. तो मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ही एब्रप्ट चेंजेस होती हैं, बहुत अचानक से बदलाव होता है. कौन कौन सी चीज़ों में? पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल कंडीशंस में, जो कि हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में चेंजेस होता है. द मेन फीचर्स ऑफ दिस पीरियड आर इंडस्ट्रियलाइजेशन. अब मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिलता है. अब इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? इट इज़ समहाउ रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज. दैट मीन्स सेटिंग अप ऑफ मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज थ्रू आउट द नेशन इज कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन. किसी भी देश में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज को सेटअप करना, ठीक है, उसको डेवलप करना इज कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन. अर्बनाइजेशन, नाउ व्हाट इज इट? इन अर्बनाइजेशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं शहरीकरण. मतलब गांव के एरिया में भी शहरों का प्रचलन बढ़ रहा है, जो जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही है और वहाँ पे शहरीकरण हो रहा है. फास्ट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, क्लियर, वाइड स्प्रेड लिटरेसी, लोग पढ़ने लगे ज़्यादा, एंड एक्सटेंसिव माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ न्यू वर्क अपॉर्चुनिटीज. एंड माइग्रेशन, you know that migration is the concept whereby the people move from one to another place in search of food, shelter or livelihood. From the above account, we can conclude that the modern period is all about the rise of modernization and a speedy progress in various spheres of life. Okay, history details में देखिए क्या लिखा है. In A History of British India, authored by the Scottish economist in 1817, Indian history had been divided into 3 periods: Hindu, Muslim and British. देखिए कितनी अच्छी बात लिखी हुई है. It was a 3-volume work based mainly on the ruling religious entities of India. देखिए हमारा देश जो है वो कहीं ना कहीं it is a secular nation, जहाँ पर हर एक धर्म को बराबर की मान्यता दी जाती है. अब ऐसा क्यों हुआ? हमने सभी धर्म को बराबर की मान्यता क्यों दी? क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है. वेरियस अदर काइंड्स ऑफ रिलीजन, द पर्सन हु बिलोंग टू अदर रिलीजियस कम्युनिटीज लिव इन आवर नेशन. अब अगर हम सब तबके को बराबर का अधिकार नहीं देंगे, इक्वालिटी नहीं देंगे, तो देयर विल बी, क्या हो जाएगा? देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट अमंग देम. लोगों के बीच में आपस में मतभेद हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इन अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया एक किताब लिखी गई है. किसने लिखी है? स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट. इकोनॉमिस्ट कौन पर्सन होते हैं? हु नोज इकोनॉमी वेरी वेल. ठीक है, अर्थशास्त्र के जो ज्ञाता होते हैं वो उनको इकोनॉमिस्ट बोलते हैं. तो 1817 में इन्होंने एक किताब लिखी, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, एंड इन दिस बुक ही डिवाइडेड this book into 3 portions. The first one was Hindu, second one was Muslim and the third one was British. अब आप समझ सकते हो, जो क्लास 6th में आपने एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, तो उसमें आपने वैदिक एरा के बारे में पढ़ा था. जब वेदों का काल था तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं जो हिंदूज थे हमारे देश में वो क्या थे? डोमिनेंट थे. ठीक है, जो किंगडम्स में जो राजा वगैरह होते थे वो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों का धर्म हिंदू का होता था. फिर मेडिवल इंडिया में जब आप आते हो और देखते हो कि अकबर, जहांगीर, मुगल एम्परर्स थे, तो उनका धर्म क्या था? उनका धर्म इस्लाम था. तो इसलिए इन्होंने अपनी किताब को पहले किस में बांटा? हिंदू में. फिर किसके कार्यकाल को बताया? मुस्लिमों के कार्यकाल को, एंड देन ब्रिटिश. अब मॉडर्न इंडिया में हमारे देश में ब्रिटिशर्स आते हैं, एंड हाउ दे एक्सप्लॉयट अस यू विल सी एंड यू विल रीड एंड यू विल गेट लर्न अबाउट ऑल दिस. So he divided his book into 3 portions. It was a 3-volume book based mainly on the ruling religious entities of India. Okay. चलिए,
With the beginning of the modern period, the Europeans began to get rid of their superstitious beliefs, unscientific ideas and social evils. तो यूरोपियंस, दैट मीन्स जब यूरोप में मॉडर्न इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी अलग अलग तरीके के सुपरस्टिशंस प्रचलित थे, सुपरस्टिशंस मतलब अंधविश्वास, बिलीफ, अनसाइंटिफिक आइडियाज, ये सब धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इंडियन सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पे भी जो सोशल इविल्स थे, जो सामाजिक, जो कहीं ना कहीं समाज में जो बेकार के प्रचलन थे, जैसे कि पर्दा सिस्टम जिसमें महिलाएं अपना फेस ढक के आती जाती थी, सती सिस्टम के बारे में आप लोगों ने पता था, जिसमें अगर किसी औरत के पति मर जाते थे तो उनको भी अपने पति के साथ में उनकी चिता पे बैठा करके जला दिया जाता था। चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत। तो ये सब चीज़ भी हमारे सोसाइटी में, मॉडर्न हिस्ट्री में, जहाँ पे यूरोपियंस जो थे वो इन सब सुपरस्टिशन से ऊपर आ रहे थे, हमारे देश में ये सुपरस्टिशंस बुरी तरीके से हमारे देशवासियों को प्रभावित कर रहे थे और इस वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। द इकोनॉमी ऑल्सो नीडेड टू बी रेमेडीड। इकोनॉमी की भी कंडीशन बहुत ख़राब थी। ऑल सच प्रॉब्लम्स वर सीवियरली हिंडरिंग द प्रोग्रेस ऑफ इंडियन सोसाइटी, और इस वजह से इंडियन सोसाइटी जो थी वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रही थी। Responsibility of dealing with the prevailing social evils was taken up by social reformers। अब ये जो हमारे देश में अलग अलग तरीके की समाज में जो भ्रांतियाँ फैली हुई थी, इनको ख़त्म करने के लिए हमारे देश में अच्छे सोशल रिफॉर्मर्स बहुत लोगों ने जन्म लिया, जैसे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड दयानंद सरस्वती। अभी इन सब लोगों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ नोटेड इकोनॉमिस्ट और एडमिनिस्ट्रेटर्स ने क्या किया, इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन को सुधारा, और कैसे सुधारा, ऑन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोसेस। दिस पीपल ऑल्सो फेल्ट द डायर नीड टू एजुकेट द इंडियन मासेस, और ये इन सब लोगों के एक मत थे कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा पढ़ाई को बढ़ावा देना होगा, तभी इन सब सोशल जो बेकार की बातें थी, इन सब चीज़ों से लोग ऊपर उठ पाएंगे। हैज़ दे मेड सिंसियर एफर्ट्स टू प्रमोट एजुकेशन। ठीक है, फॉर दिस स्कूल्स एंड कॉलेजेस वर ओपन एट वेरियस प्लेसेस, डिफरेंट सब्जेक्ट्स वर टॉट इंक्लूडिंग इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेजेस। ओके, इन द कोर्स ऑफ देयर एजुकेशन मैनी इंडियंस वर इम्प्रेस्ड बाय वेस्टर्न थॉट्स एंड आइडियाज। अब जब एजुकेशन में वेस्टर्न लैंग्वेज को भी पढ़ाने लगा गया तो जो इंडियंस थे उन्हें समझ में आया कि भाई वेस्टर्न चीज़ें जो हैं, जैसे कि यूरोपियंस में मॉडर्न हिस्ट्री में यूरोपियन के उनके यहाँ कोई भी इस तरीके की सोशल लेवल्स नहीं है, तो उनको ये पढ़ने के बाद समझ में आया कि हमारे देश में भी ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चलो यहाँ पे फोटो देख लीजिए, राजा राम मोहन रॉय एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दे वर दी सोशल रिफॉर्मर्स एंड वेरी आइकॉनिक पर्सनैलिटीज। ओके, वेरियस वेस्टर्न आइडियाज जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सब हमारे देशवासियों में धीरे धीरे अब उनके मन में ये सब चीज़ें आने लगी। उन्होंने वेस्टर्न कल्चर पढ़ना शुरू किया, हिस्ट्री, फिलॉसफी, फॉरेन इम्पेरियलिज्म। उन्होंने जब पढ़ा तो उनको ये लगा कि किस तरीके से हमारे देश को ये ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम खुद ही हैं, बिकॉज हम खुद अपने आप में जब इक्वालिटी नहीं रखेंगे तो बाहर से जो व्यक्ति आएगा वो तो हमारा फ़ायदा उठाएगा ही। Okay, these very people worked to create political awakening among the Indian masses. Their thoughts and efforts inspired the national movement, which later took the shape of freedom against struggle against British rule. ठीक है, तो धीरे धीरे आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे कि किस तरीके से पॉलिटिकल लोगों को समझाया गया, उनको राजनीतिक ज्ञान दिया गया और बताया गया कि आपको कैसे ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े होना है, और धीरे धीरे हमारे देश में ब्रिटिशर्स के खिलाफ किस तरीके से स्ट्रगल लोग करते हैं फॉर इंडिपेंडेंस। आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ सफरिंग एंड माइजरी, sacrifices of thousands of Indians in the freedom struggle led to the independence of India in 1947। तो हमारे देश में इतना परेशान होने के बाद, इतनी सफरिंग्स, इतना लोगों के झेलने के बाद हमको 1947 में अंततः क्या मिलती है, आज़ादी। Since independence, India has been going through a process of reconstruction, confronting challenges of various kinds, gradually marching towards the goal of achieving all-around development and progress। और उसी समय से हम लोग अपने देश में डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस के लिए वर्क कर रहे हैं। History reveals the British government in India was well aware of the importance of the National Museum and the National Archives. Therefore, these institutions were located near the Viceregal Palace when New Delhi was built। ब्रिटिश गवर्नमेंट को हमारे देश में
नेशनल आर्काइव और नेशनल म्यूजियम की इम्पोर्टेंस बहुत अच्छी तरीके से पता थी, इसलिए जब नेशनल म्यूजियम और नेशनल आर्काइव बनवाया गया तो इनको कहाँ पे लोकेट किया गया, वाइसरॉय रेगल पैलेस में, जो कि न्यू दिल्ली के पास में है। ओके क्लास, सो विद दिस वी आर एंडिंग दिस क्लास ऑफ योर सब्जेक्ट, एंड इन दिस चैप्टर we will study further in the next classes. Okay, so try to watch full video and try to learn this lesson by yourself also. And if you have any query, you can comment on this video and ask me. ठीक है बच्चों, जब अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए मुझे और मुझसे क्वेश्चंस पूछिए। ओके, थैंक यू।